آج سے پہلے آپ نے ایسا پروگرام نہ دیکھا ہوگا، نہ آپ دیکھیں گے، اگر کوئی کرے گا بھی تو ہم کو کاپی کرے گا۔ آج ہم خواجہ سرا کی کمیونٹی میں جائیں گے اور خواجہ سراؤں سے ایسے سوال کریں گے جو انتہائی تلخ ہوں گے۔ جن گھروں میں کوئی ہجڑت پیدا بھی ہو جائے، ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، آپ ان کو یہ نہیں پالیں۔ ظاہر اللہ نے دیکھیں، ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرلائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے یا اللہ، اس کو آزاد تو نے پورے دیے۔ اس وقت خواجہ سراؤں کا جو باقاعدہ ڈیرا ہے اس میں ہم جانے والے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ خواجہ سراؤں کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے، خواجہ سرا کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ خواجہ سرا اندر موجود ہیں۔ یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے، اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا۔ مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا ہے نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں۔ یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا۔ اور آئی لو یو انجینئر صاحب کہ ہم آپ کو بہت لائک کرتے ہیں اور بہت شوق سے سنتی ہیں۔ تیسری جماعت میں میرا سکول بند ہو گیا کیونکہ میں ٹرانسجینڈر تھی، تو میں ایک ان پڑھ رہ گئی۔ پھر میں گروؤں کے پاس چڑھ گئی، پستی پستی اس طرح نا بیکتی تو بیک گئی۔ آپ یا آپ کے خواجہ سرا جو شاگرد ہیں، جی، اگر یہ سیکس نہ کریں تو رب نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ خواجہ سرا کا کوئی گورنمنٹ نے آج تک نہ قبرستان ہی نہیں بنایا کسی شہر میں کہ جہاں خواجہ سرا کو دفنا دیا جائے۔ شیمیل، ٹرانسجینڈر، زنخواہ، مخنث، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ بیسیکل کیا ہیں؟ آپ خود بنے ہوئے ہیں یا آپ ہیں؟ اب میں آپ کو کپڑے اتار کے تو دکھا نہیں، ہماری باڈی تو مردوں والی اللہ تعالیٰ نے بنا دی نا، تو ہمارے مرو عورتوں والی ڈال دی۔ تو کس دینی عالم کو سننا پسند کرتی ہیں؟ ہاں جی، انہیں کو بہت لائک کرتی ہوں اور انہیں پسند کرتی ہوں اور ان کو سنتی بھی ہوں۔ کبھی آپ کا جانا ہوا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ؟ جاتے ہیں ہمارے خواجہ سرا، میں بھی جاتی ہوں، 3 دن کے لیے کبھی چلے گئے، کبھی مہینے کے لیے چلے گئے، کبھی 15 دنوں کے لیے چلے گئے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے۔ ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی۔ جناب انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں۔ کچھ گھر والے سب تانے مارتے تھے، ہجڑا خسرا ایسے پکارتے تھے، تو اسی وجہ سے پھر ہے نا ہم گھر سے بھاگا۔ کبھی ہم نے خواجہ سراؤں کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا کوئی الگ سے مسجد ہوا کرتی ہے؟ خواجہ سرا جب مر جاتے ہیں ان کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ عام مساجد میں ان کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہاں، ہماری ایک نا خواجہ سرا کی ڈیتھ ہو گئی، اب ہم نے اس کی باڈی لے آ کے نا غسل دے کے کفن پہنا کے تو اس کی باڈی لے آ کے ہم نے مسجد کے دروازے کے آگے رکھ دی۔ جمعے کا دن تھا، جیسے ہی لوگ باہر نکلے نا تو ہم مولوی کے پیروں میں گر گئے کہ اللہ کے نام پہ اس کا جنازہ کرا دو۔ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم بھی جانا چاہتے ہیں انجینئر صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے، ہمیں یہی دل میں خوف ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں دوسرے بھگا دیتے کہیں وہ نہیں ہمیں بھگا دیں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پلیٹ فارم پر جس نوعیت کا پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی پوری ہسٹری میں آج سے پہلے آپ نے ایسا پروگرام نہ دیکھا ہوگا، نہ آپ دیکھیں گے، اگر کوئی کرے گا بھی تو ہم کو کاپی کرے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم خواجہ سرا کی کمیونٹی میں جائیں گے اور خواجہ سراؤں سے ایسے سوال کریں گے جو انتہائی تلخ ہوں گے۔
यानी जिनको ट्रांसजेंडर्स बोला जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बबांग दोहल क्या बताते हैं, क्या फरमाते हैं। बहुत सारे क्लिप्स उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से रिकॉर्ड करा रखे हैं और ये भी बताया कि जब ये मर जाते हैं इनका जनाजा कौन पढ़ाता है, इनका जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है और इनको दफन कौन करता है, कैसे किया जाता है, माशरा इनको क्यों कबूल नहीं करता। ये हमारे माशरे का पिसा हुआ तबका है, आखिर क्यों। आज हम ख्वाजा सराओं की खिदमत में ये सवालात रखेंगे, उनसे जानेंगे कि मस्जिद में जब आपको जाना होता है और आपका जी चाहता है कि आप भी नमाज अदा करें तो आपको नमाज पढ़ने से रोका क्यों जाता है, और अगर नहीं रोका जाता तो आप लोग मस्जिद में नजर क्यों नहीं आते। ख्वाजा सरा के गुरु भी हमारे साथ होंगे, बहुत सारे ख्वाजा सरा भी हमारे साथ होंगे। तो आइए हमारे साथ तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त ख्वाजा सराओं का जो बाकायदा डेरा है उसमें हम हाजिर होने वाले हैं, जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि ख्वाजा सराओं की जिंदगी कैसी हुआ करती है, ख्वाजा सरा किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ख्वाजा सरा अंदर मौजूद हैं, अभी हम अंदर की जानिब जाएंगे और ख्वाजा सराओं की खिदमत में सवालात रखेंगे। हमारे साथ आइए। अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़े की शक्ल में पैदा किया, ये बात सच है। तो ख्वाजा सरा का भी जोड़ा होना चाहिए। और इनका जनाजा कैसे होता है, मर्द की तरह या औरत की तरह। ये मेरे भाई प्योरली एक साइंटिफिक एक चीज़ है, इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, ट्रांसजेंडर्स और साथ मेरा नाम लिखे। 25-30 मिनट की वीडियो है, मैंने इनके सारे अहकामात बयान किए हैं। और इसमें आप जोड़ा तो आप यहाँ ट्रांसजेंडर की बजाय लिखें फरिश्तों का भी कोई जोड़ा होना चाहिए। इनको तो हम बाद में देखेंगे ना, फरिश्तों का कोई जोड़ा है नहीं। तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा हुई है, इससे मुराद है अमूमन। एक्सेप्शन तो अल्लाह ने हर चीज़ में रख दी हुई है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो फरिश्तों का तो कोई जोड़ा नहीं है, वो भी तो मखलूक है। हज़रत जिब्राइल की कोई बीवी नहीं है, ना हज़रत जिब्राइल का कोई खामंद है, ना वो मर्दों की कैटेगरी में फॉल करते हैं ना औरतों की, वो एक अलग से एक मखलूक है। तो वो उमूमन बात की जा रही होती है। बाकी ये जनाजे की बात करना या अहकामात तो वो साइंटिफिकली ये डिटरमिन किया जाएगा। जो इस तरह का ख्वाजा सरा या मुखन्नस कह लें उसे, वो मर्दों के ज़्यादा करीब है, उसके ऊपर मर्दों वाले अहकाम लगेंगे। जो औरतों के ज़्यादा करीब है उस पर औरतों वाले अहकाम लगेंगे। बाकी आप वीडियो देख लें। ये वो तबका है जो हमारे माशरे का इंतहाई पिसा हुआ तबका है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ख्वाजा सराओं के हवाले से क्या बताते हैं, क्या फरमाते हैं और इन लोगों को, इस कौम को माशरे का पिसा हुआ तबका क्यों कहते हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि जब ये मर जाते हैं, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इनका जनाजा कौन पढ़ाता है। हमने कभी नहीं सुना कि किसी मस्जिद में ये ऐलान हो रहा है कि फला ख्वाजा सरा का इंतकाल हो गया। उनका ये कहना है कि भाई ये रात के किसी पहर में मर जाते हैं तो इनको रात के पहर ही में दफन कर दिया जाता है और इनका अपना गुरु ही इनका नमाज जनाजा पढ़ा देता है। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि इनको नमाज भी अदा करनी नहीं आती। भाई ये बेचारे बहुत बेबस हैं, लाचार हैं और इनको कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं। मगर चूंकि कानून साजी हो चुकी है, अब इनको इनके हुकूक दिए जा रहे हैं और इनका शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड भी बन रहा है। हमारे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनके गुरु भी मौजूद हैं। आज हम इंतहाई तल्ख और दीनी सवालात इनकी खिदमत में रखेंगे और जवाब इन्हीं से लेंगे, चूंकि तारीख का इंतहाई मुनफरिद प्रोग्राम आप अहमद नसीर ऑफिशियल पे इस वक्त देख रहे हैं। हम इनके गुरु की जानिब बढ़ते हैं और उनकी खिदमत में सवालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और आज हम ऐसे हकायक पर बात करने जा रहे हैं जो इससे पहले सोशल मीडिया पर बातें नहीं की गई, सवाल नहीं उठाए गए, क्योंकि किसी ने जुर्रत सवाल किया ही नहीं कि इस तबके की जानिब भी कोई आए और इनसे ऐसे सवाल करे कि लोग जान सकें कि भाई ये भी उसी रब को मानते हैं जिस रब को हम मानते हैं, ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं। मगर तखसीस कर दी गई, बांट दिया गया, फिरकों में बांट दिया गया। इंजीनियर साहब बहुत खूब फरमाते हैं और इनके हकूक के हवाले से बात भी करते हैं। आज ख्वाजा सरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर उनके गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक ख्वाजा सरा की खिदमत में सवालात रखेंगे, उनसे जवाब भी लेंगे, मगर सबसे पहले हम उनके गुरु की खिदमत में हाजिर हुए हैं, उनसे कुछ ऐसे तर्क सवालात उनकी खिदमत में रखेंगे और जानेंगे कि आखिर ख्वाजा सरा, ज़नखा, हिजड़ा, मुखन्निस, खुसरा और तरह तरह के बुरे बुरे इल्काबात से इनको नवाजा जाता है। कितनी तकलीफ पहुंचती है, कितना दुख होता है, जबकि ये भी इंसान है, हमारी तरह के इंसान है, लेकिन ये जरा स्पेशल हुआ करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया, मैं मशकूर हूं आपका। क्योंकि आप लोग जरा घबराते हैं, डरते हैं कि भाई हमारे पास कोई आएगा, मालूम नहीं हमारे साथ क्या कर जाएगा, आप घबराते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब आप माशरे की सितम ज़रीफ़ी देखते हैं, आप जरा इस हवाले से बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम चौधरी है, तो मैं एक इदारा भी चलाती हूँ, शबनम चौधरी मसीहा टीम 786 के नाम से, जिसमें ख्वाजा सरा को ना दीन की तालीम दी जाती है।
आज तक किसी इदारे ने, कितने इदारे काम कर रहे हैं ना, किसी इदारे ने ना ये काम नहीं किया कि ख्वाजा सरा की दीन के ऊपर काम किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है, मेरा बचपना जो था, तीसरी जमात में मेरा स्कूल बंद हो गया क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर थी, तो घर वालों ने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया, तो मैं एक अनपढ़ रह गई। फिर मैं गुरुओं के पास चढ़ गई, पिसती पिसती इस तरह ना बैठती बैठती तो बैठ गई। तो अब जब मैं खुद गुरु बनी हूँ ना, तो मुझे एक मकाम मिला है, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास है ना, और कोई नहीं तो जो मेरे पास है, तो मैं इनको कोई थोड़ी बहुत जितनी हो सके मैं इनको तालीम दे सकूं। तो मैंने एक स्कूल बनाया हुआ है, वहाँ मैंने कारी साहब रखा हुआ है, तो ख्वाजा सरा वहाँ तालीम लेते हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, अशरफुल मखलूकात, हाँ, ठीक है। सुभान अल्लाह। बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो ना तो गुज्जर थे, ना जट थे, ना मरासी थे, ना राई थे, ना शाह थे, वो एक इंसान थे। तो हम भी एक इंसान है, जी हाँ। अशरफुल मखलूकात है, वही इंसान हम भी हैं, वो जो औरत है, जो मर्द है, हम भी वही दिल रखते हैं जो औरत और मर्द रखता है। हमारे में वही जज्बा है जो एक औरत और एक मर्द में, लेकिन हमें ना माशरे ने दुरकार दिया है, माशरे में हमें एक साइड पे कर दिया है। सबसे पहले तो मुझे दुख हुआ, तकरीबन जुमेरात वाली रात को ना मेरी ख्वाजा सरा यहाँ सोई है, तो सुबह उसकी डेथ हो गई। जब मैं 8 बजे उठी हूँ ना, तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। सर्दी की वजह से उनका इंतकाल हो गया? नहीं जी, सर्दी की वजह से उसका इंतकाल नहीं हुआ। उसको ना रात को तकरीबन 10 बजे उल्टियाँ आई हैं, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ, उसकी दवाई ले आई है, दवाई ले आके उसको मैंने लिटाया है, और वो कहती है कि मेरे नीचे आग जलाए, मुझे सर्दी लग रही है। मैंने आग जलाई है, तो 1 बजे मैंने उनसे पूछा है कि बेटा अब आप ठीक हो? कहती मैं ठीक हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। 1 बजे मैं सो गई हूँ। जब मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ ना, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसकी फैमिली वालों का ना मेरे पास नंबर नहीं था, मेरे पास राब्ता नहीं था। कितने अरसा से था वो आपके पास? मेरे पास तो वो अभी तकरीबन 1 माह के पास माह था। अच्छा, उसने बताया नहीं आपको कि मैं किस फैमिली से आया हूँ या आई हूँ, मैं मेरे वालिद का नाम ये है? ये घबराते हैं, फैमिली के बारे में बताने से घबराते हैं, ये फैमिली का जल्दी बताते हैं। यानी आपके पास जितने भी यहाँ ख्वाजा सरा मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, आपको पता नहीं ये कहाँ से आए हैं? नहीं, आप पूछते भी नहीं है? जो मैं हूँ ना, मैं पूछती हूँ, मैं आईडी कार्ड उनके लेती हूँ, बकायदा नंबर रजिस्टर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं इनको भी रजाइयों भी बांटती हूँ, और रमजान शरीफ में इनको राशन भी देती हूँ। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी इमदाद करते हैं, तो मैं इन लोगों की इमदाद करती हूँ। ठीक है। तो मैंने तो कनेक्ट रखे हैं, लेकिन मेरी गलती कि मैंने उसका कनेक्ट नहीं रखा। तो फिर मैंने ना जितने नंबर थे ना, उन नंबरों पे कॉल करती गई कि कोई तो उठाएगा ना। सही है। तो जब उसके भाई तो उसके थे नहीं, उसके भांजे थे, उसके भांजे उन्होंने कॉलें बंद कर दी, नंबर बंद कर दिया। ठीक है। 8 बजे से लेके ना 2 बजे तक उसकी डेथ यहाँ थी, या सारे ख्वाजा सरा थे या मोहल्ले वाले लोग थे, तो वो कहते थे आप दफना दो। सबसे पहले तो ये बात है कि ख्वाजा सरा का कोई गवर्नमेंट ने आज तक ना कब्रिस्तान ही नहीं बनाया किसी शहर में कि जहाँ ख्वाजा सरा को दफना दिया जाए। यहाँ लाहौर शहर की बात करूँ, यहाँ आम आदमी को दफनाने के लिए 40-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए लग जाते हैं। जी हाँ, ठीक है, सही बात है। सही तो हम तो वो ख्वाजा सरा थी, उसकी 90 साल एज थी, वो बैकिंग करने वाली थी। उसके पास तो जब उसकी हमने पेटी खोली है, तो उसमें तो तकरीबन कोई 500-700 रुपए निकले हैं। ठीक है। तो उसकी मैयत को लेके जाना था यूसुफ वाले साहिवाल अड्डे पे। ठीक है। तो पता चल गया घर वालों का? हाँ, फिर पता चल गया। फिर मैंने उन पे जोर डाला, प्रेशर डाला। कोई पुलिस का, मैं काम करती हूँ ना इदारे में, तो कुछ वहाँ के बडेरों का तलक निकाल के उन पे प्रेशर डाला, और कुछ उनको पैसों का लालच दिया। ठीक है। कि मैं एम्बुलेंस भी करा के देती हूँ, ऊपर से भी पैसे आपको देती हूँ, तो आप इसको लेके जाएं। तो फिर वो लेके गए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब माशरा आपको कबूल नहीं करता, गंदे गंदे नामों से पुकारता है, और आपके साथ ज्यादतियां की जाती हैं, आप किसी चौक चौराहों पर जाते हैं
تو آپ کو کوئی انگلی کر کے گزر جاتا ہے, پریشان کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ انگلی کی بات کرتے ہیں, یہاں تو اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں جو اتنی سردی میں پانی پھینک جاتے ہیں ٹھنڈا. اگر کوئی بیکنگ کر رہا ہے نا, اب جا کے بیکنگ کا ذرا سمجھا دیں ناظرین کو. اگر کوئی بیکنگ ظاہری بات ہے, جوانی ہماری گزر جاتی ہے ناچتے ٹاپتے اچھے. نہیں, بیکنگ کیا ہوتا ہے؟ بیکنگ کیا ہوتا ہے؟ بیکنگ یہی ہوتا ہے کہ مانگنا, ٹھیک ہے, صدا لگانا. ہاں صدا لگانا. صحیح ہے, صحیح ہے. اگر کوئی بوڑھا خواجہ سرا ہے, وہ ڈانس نہیں کر سکتا, وہ سیکس نہیں کر سکتا, تو وہ مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے. اگر کوئی خواجہ سرا بیکنگ کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک جاتے ہیں, اس کو انڈے مار جاتے ہیں جاتے وقت. ایسے لڑکے بھی ہیں. اچھا, میں ابھی آپ سے ایک پرسنل سوال کرنے والا ہوں, پھر ظاہر ہے کہ میں نے آپ کے جو دوسرے ٹرانسجینڈرز ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں ان کی جانب پہ بڑھنے. آپ شیمل ہیں, ہیمل ہیں, فیمل ہیں, آپ ٹرانسجینڈرز ہیں, آپ ہجڑا ہیں, آپ خواجہ سرا ہیں, آپ مخنث ہیں, آپ زنخہ ہیں, آپ بیسیکل کیا ہیں؟ ان میں مجھ کو فرق بتا دیں ذرا. میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاؤں, میں ایک انسان ہوں. ہاں, ٹھیک ہو گیا. میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں, بعد میں ہجڑا یا مخنث یا یہ لفظ دیا ہے اس دنیا نے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسان کے روپ میں بنایا ہے اور ایک انسان بنایا ہے. جی ہاں. تو کیا ہے, ایک چھوٹی سی بات کا فرق ہے. تو اس بات پہ میری بات سنیں, ٹھیک ہے. میری قسمت مجھے یہاں کھینچ کے لائی. کتنے ٹرانسجینڈر ہیں, کوئی جج ہے, کوئی کیسے, کوئی کیسے, کوئی کیسے, لیکن وہ اپنی نا شناخت چھپا کے کر رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, اپنی شناخت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, تو ہماری شناخت چھپ نہیں سکی. میں قضا کروں معذرت چاہ رہا ہوں. ناظرین کرام, میں یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ چلوانا چاہتا ہوں اپنی ٹیم سے کہہ کر کہ جب ان کی خدمت میں یہ سوال رکھا گیا کہ بھائی جب کسی کے گھر میں خواجہ سرا یا مخنث پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو گرو کے حوالے کیوں کر دیا جاتا ہے, اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا فرمایا, کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑے پیدا بھی ہو جائیں, ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں, حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, آپ ان کو یہ نہیں پالیں. ظاہر اللہ نے دیکھیں, ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے, اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے, پیرلائز ہوا ہو, فالج گرا ہوا ہو, تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہ شکر ہے یا اللہ, اس کو آزاد تو نے پورے دیے, ایک چیز ڈسیبل رکھی نا. تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں, لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں, لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں. یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا, حقیقت بات ہے. اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کون پروفیشنل ہے. باقی ایک چیز ہے, یہ بڑے آرگنائز ہیں. ان کا آپ لوگوں تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے. ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, بیبے, بیبے بھی کہتے ہیں, گورو بھی کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہے, امریکہ میں, یورپ میں. آپ یوٹیوب پہ پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر, مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام, کلپ آپ نے دیکھا. ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی پیرالائز بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی آپ کے گھر خواجہ سرا یا مخنث پیدا ہو جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی کفالت کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جواب بھی انہوں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے سن بھی لیا. مجھے آپ یہ بتائیے, میں سوال کرنے والا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جن خواجہ سراؤں پر جوانی آتی ہے وہ سیکس ورکرز بن جاتے ہیں, وہ سیکس کرتے ہیں. آپ اس کام کو چھوڑ کر کوئی ایسا اچھا کام نہیں کر سکتے کہ مطلب آپ کو روٹی بھی ملتی رہے, پیٹ بھی بھرتا رہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں ہمیں کوئی 10 روپے خیرات نہیں جلدی سے دیتا چھیڑنے سے کے بغیر, اور ہمیں جاب کون دے گا؟ نئی لوگ کر رہے ہیں. آپ کو میری بات سنیں, ایک چھوٹی سی بات سنیں. پاکستان آزاد ہوئے کو کتنا عرصہ ہوا؟ 76 سال. 76 سال. 76 سالوں میں ہمیں ہماری شناخت ملی ہے, تو آگے کیا ہوگا؟ بنیادوں تو سب لوگ رکھ دیتے ہیں, فوٹوਆਂ لگا دیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں, فنڈنگ کھا جاتے ہیں سب لوگ. تو کیا خواجہ سرا کے لیے, لیکن اب کام کر رہے ہیں, اچھے محکموں میں کام کر رہے ہیں. کتنے کر رہے ہیں؟ 70 سالوں میں تقریباً اب 30 خواجہ سرا کام کر رہے ہیں.
तो वो भी हमारी जद्दोजहद करने के बाद हम सड़कों पे निकले हैं, हमने अपने सर फाड़े हैं, हम रोड पे भूखे बैठे हैं, नंगे सोए हैं। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद वो भी 1 साल के प्रोजेक्ट पे उनको रखा हुआ है। अच्छा, वैसे एक पर्सनल सवाल है, आपको लगता है कि अगर आप या आपके ख्वाजा सरा जो शागिर्द हैं, जी। अगर ये सेक्स ना करें, ऐसे काम में ना मुलव्विस हों, तो रब ने रिस्क का वादा कर रखा है, इंशाल्लाह। तो तो फिर अल्लाह छोड़ दे। ताला ने, फिर छोड़ देना। मेरी बात सुने, सबसे पहले ये ना पे मुराद पेट लगा हुआ है, ये ना मुराद पेट लगा हुआ है, तो ये मिट्टी से नहीं भरता, ये मिट्टी से नहीं भरता। तो जो अगर कोई ख्वाजा सरा सेक्स करता ही है तो वो दरख्तों के साथ तो नहीं करता ना, वो भी आपकी कम्युनिटी के साथ ही करता है। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि अब वो छोड़ दे, रिस्क का रब ने वादा कर रखा रिज़्क़ है। का रब ने वादा किया है, लेकिन जिस हाल में रिज़्क़ लिखा है अल्लाह ताला ने उसी तरह ही मिलना है। ठीक है नाज़रीन किराम, ये इनका मौक़िफ़ है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, शीमेल, ट्रांसजेंडर, ज़नख़ा, मुखन्निस, इनमें फर्क क्या होता है? इसको इनमें- खुसरा बोल देते हैं, इनमें कोई खुद फर्क बने हुए नहीं होते है। हैं। आप बेसिकल क्या है, आप खुद बने हुए हैं या आप हैं? जरा नहीं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनकी हिस्ट्री पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद सईद है, जो मेरे माँ बाप ने रखा है, जी, और शबनम चौधरी मेरी कम्युनिटी ने मेरा नाम रखा है। ठीक है, हो गया। सही है, सही है, मैं पाक पतन शरीफ की रहायशी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मेरी फैमिली मुझे अपसेट करती है, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अटैच है। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें, अब मैं आपको कपड़े उतार के तो दिखा नहीं नहीं, सकती। नहीं, 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 अल्लाह माफ़ मैं करे, अल्लाह आपको माफ़ ये, करे। मैं एक ही बात जी हाँ, बताऊंगी। जी हाँ, जी हाँ। जिसके अंदर रूह है ना, जी। वो एक ख्वाजा सरा है, वो ट्रांसजेंडर है। रूह तो सबके अंदर है। आपके अंदर रूह मर्दों वाली है, तो अब ये बात करें ना, औरत के अंदर औरतों वाली रूह है। हाँ। तो हमारी बॉडी तो मर्दों वाली अल्लाह ताला ने बना दी ना, देखिए। तो हमारे में रूह औरतों वाली डाल दी। शिकवा कर रही है रब से? नहीं, उसने जानवर तो नहीं बनाया ना, उसने इंसान बनाया, अशरफ मखलूकात बनाया, सुभान अल्लाह। हजूर पाक का उम्मती बनाया, उनके नक्शे कदम पे चलने का सिखाया है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों नहीं चलते आप? तो चलते हैं। नहीं, सेक्स वर्कर्स हैं आप? नहीं कर रहे ना? नहीं, सेक्स वर्कर, इनमें कोई सेक्स वर्कर नहीं बैठा। अच्छा, इनमें कुछ फंक्शन वाले बैठे हैं और कुछ बैकिंग करने वाले बैठे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर नहीं, इनमें आपने कोई पहले सेक्स- कहा ना कि फिर क्या करें हम लोग? मैं एक बात कर रही हूँ, अच्छा, अपनी कम्युनिटी को लेकर बात करें। मैं अपनी सही है, कम्युनिटी की बात कर रही सही है, हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। अगर हमारी कम्युनिटी को कोई सेक्स वर्कर बोलता है, जी, वो सेक्स वर्कर बनते हैं, तो वो भी ये मर्दों की कम्युनिटी बनाती है उनको। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी पैदाइश होती है तो आपको ये महसूस होने लगता है कि भाई हम स्पेशल हैं, यानी नहीं। पैदाइश हो गई? जब हमारी पैदाइश होती है जी। हमें क्या पता होता है कि हम क्या है? ये तो हमें माशरा सिखाता है ना कि आप क्या हो। नहीं, लेकिन हम आपको जैसे- पता चलता जैसे है कि हम हमें- मर्द नहीं है या हम औरत नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, उसी तरह की हमारी फीलिंग भी हमारे साथ ही बड़ी होती है। तो हमारे अंदर रूह होती है, तो हम आम लड़कियों वाले काम करेंगे, हमें लड़कियों वाले काम पसंद आएंगे, हम लड़कियों के यानी साथ- आपको किस उम्र में जाकर ये एहसास होने लगता है कि हम ना मर्द है ना औरत है? हमें तकरीबन 5-6 साल में एहसास होने लगता है। हाँ, और फिर आपको घर से छोटे 4 साल से, हमारे 5 साल से जब होश संभालती है ना, तो हम लड़कों के साथ खेलना बहुत मुश्किल है, तो लड़कियों के साथ ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, तो फिर अब जब आपको फील होने लगता है कि अब आप वो नहीं है, जी। ना मर्द है ना औरत है, तो फिर आपको घर से निकाल दिया जाता है या आप खुद किसी गुरु के पास पहुंच जाते हैं? ये जरा सफर बताइए। मैं आपको सबसे ये बताऊंगी बात, जब हमारी फीलिंग बड़ी होती है ना हमारे साथ साथ, तो मोहल्ले वाले कहते हैं ये खुसरा है, ये ट्रांसजेंडर है, ये भी आपका बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो माँ बाप की फिर डांट, भाइयों की डांट, खानदान की डांट, तो हम लोग, कुछ लोग डांट से भाग आते हैं, तो कुछ वैसे ही शर्मिंदगी से भाग आते हैं, जो इतना अरसा फैमिली से राब्ता ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस हमारी फील्ड में सैयद भी हैं, अच्छा, गुजर भी हैं, जट भी हैं, मरासी भी हैं, शेख भी हैं, हर फिरके का आदमी हमारी कम्युनिटी में है। लेकिन हम सब एक है, हम इंसान है, हम में कोई फिरका नहीं है। ठीक है, सही है, सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जो कि फिरकों की बात चल पड़ी, कभी आपका
जाना हुआ तबलीगी जमात वालों के साथ? जाते हैं हमारे ख्वाजा सरा, मैं भी जाती हूँ। 3 दिन के लिए कभी चले गए, कभी महीने के लिए चले गए, कभी 15 दिनों के लिए चले गए। काफ़ी ज़्यादा हमारे ख्वाजा सरा मौलाना तारक अल जमील के साथ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। खासतौर मेरे शिगिर्द जाते हैं चीचा वतनी से, मियाँ चन्नू से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो क्या सीखते क्या है और फिर आकर क्या जो वहाँ सीखते हैं वो हम आप अपनी कम्युनिटी को सिखाते हैं, क्योंकि हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन किराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का यहाँ भी क्लिप चलवाऊंगा कि जब उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से ये बताया कि भाई अब तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है कि तबलीगी जमात वालों के साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जाते हैं और जाहिर है कि फिर वहां दीन का काम करते हैं, दीन सीखते हैं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो अल्लाह भला करे तबलीगी जमात का, जिन्होंने पहली दफ़ा इनको भी कोई इंसानियत में समझते हुए इनकी जमातें निकालनी शुरू की हैं, इनमें दावत व तबलीग का काम शुरू किया है। हिजड़ों की जमातें बाकायदा निकलती हैं तबलीगी जमात की। जनाब उन्होंने इस पोर्शन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, और बड़े बड़े नेक हिजड़े हैं जो अपने सारे काम छोड़ के इन कामों में आ चुके हैं। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। पहले मैं आपके जो शागिर्द हैं इनके पास जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ये माइक पकड़ अस्सलाम। लीजिए। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक है। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम है मैडम तलाश। मैडम तलाश। तो किसकी तलाश है आपको? मुझे तलाश है अपने आप की। हाँ, तो अभी तक आप खुद को मिल पाए या नहीं? नहीं मिल पाई पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को खो दिया है। क्यों खोया आपने अपने आप को? बस मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था, मैंने अपने आप को खो दिया। अच्छा, दीन से रग़बत है? हाँ रग़बत है, दीन से मोहब्बत करती हूँ। दीन से मोहब्बत करती हैं, तो किस दीनी आलिम को सुनना पसंद करती हैं? जी मैं मौलाना तारक जमील को भी सुनती हूँ, और इंजीनियर को बहुत लाइक करती हूँ और उन्हें पसंद करती हूँ, ठीक है, और उनको सुनती भी हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, वो आपके हवाले से, आपके हुकूक के हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, मुझे तलाश जरा अपने जर्नी के हवाले से बताइए, अपने सफ़र के हवाले से बताइए। अपने गुरु के पास कैसे पहुंचे आप, यानी मैडम शबनम के पास आप कैसे पहुंची? आप पैदाइश के बाद कैसे फील किया आपने कि भाई आप आम इंसानों की तरह नहीं है, आप बल्कि खास हैं? कैसे फील किया आपने? माशरे के ताने, माशरे के तंज, माशरे की गालियां आपने बर्दाश्त की और ज़ेब तन कर ली, ओढ़ ली। ओढ़ी जो मैंने खुद पे बहुत खुरदरी लगी। अब तुम बताओ कैसे तुम्हें जिंदगी लगी, जरा तलाश बता दो मुझको। सबसे पहले तो हम पैदा हुए, अपना होश संभाला तो हमने संभाला कम से कम 10-11 साल में। आपको किसी ने नहीं संभाला? नहीं, मेरे वालिदैन ने हमको संभाला, पर जो मेरी फीलिंग थी डॉल से खेलना, ठीक है, लड़कियों के साथ खेलना, और ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों खेलती, मुझे जो अच्छा लगना मैं वो करना, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ खेलना। लड़कियों के साथ? हाँ, डॉल के साथ खेलना, उनकी शादी कराना डॉल की, उनके साथ बैठना। फिर कभी कभी उन्होंने कहना जाओ हमारे पास ना बैठो, इग्नोर कर देना। डॉल ने कहना? नहीं, लड़कियों ने। अच्छा, लड़कियों ने। बच्चों ने, जब मैं बच्चे थे वो भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो जो लड़के थे वो मेरे साथ नहीं, मेरे मतलब बैठते उठते थे। अच्छा, उनको पता था ना कुछ, तो मुझे नहीं महसूस होता क्या फीलिंग है। हाँ। फिर जब मैं बाद में एक ऐसे गुरु थे उनके पास पहुंची, वो फंक्शन करती थी। ठीक है, नहीं आप खुद से गए या घर वालों ने कहा कि निकलो यहाँ से, निकलो? मैं खुद सच बता दो आज। बस मुझे कोई एक सहेली मिल गई, शीमेल थी, वो ऐसे ऐसे करती थी, हाय ओ, मैंने कहा हाय इसको क्या है, ये क्या चीज है, मुझे खुद को नहीं समझ। यानी आप हकीकी ख्वाजा सरा हैं, आप लड़के नहीं है जो खुद से ये चेहरा डोब कर नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं थी कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे पता नहीं था। मैंने इस बारे में ना सुना था, ना कुछ पता था, ना इल्म था, फीलिंग थी। वो बाद में सब कुछ पता चला, अपने जवानी में 15, 16, 17 साल की उम्र में जान पहचान सब कुछ पता चल गया। नहीं, मुझे ये बताइए तलाश कि खुद को तलाश करते करते आपको घर से निकाला गया या आप घर से खुद भागी? मैं खुद भागी घर से। अच्छा, घर से आप खुद भागी। हाँ। तो घर वालों ने ढूंढा आपको? ढूंढा, 1 माह तक ढूंढा, मैं नहीं मिली। कहाँ से थी आप? मैं जिला पाकपतन। पाकपतन से लाहौर आ गई? लाहौर। और कभी उनको पता चला कि तलाश लाहौर है? हाँ, उनको पता चला, पर वो लेने आए कि 2 दफा मैं नहीं गई। क्यों? 1-2 दफा लेने नहीं गई, फिर 1 दफा लेने गई भी सही, फिर भी भाग के वापस दोबारा आ गई, उनको पता भी नहीं चला। ठीक है, सही है, ये आपकी कहानी है। तो जैसे कि आपके गुरु बताते हैं कि भाई तबलीगी जमात के साथ भी जाते हैं
और दीन से शगफ भी है, तो आप भी कभी तबलीगी जमात के साथ गए? नहीं, मैं जस्ट नहीं गई। जस्ट नहीं गई, हाँ, ठीक है, मुझे ना मैसेज नहीं मिली शीमेल तबलीगी जमात वाली। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं नाज़रीन कराम जरा अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि जरा कैमरे को हैंडी करे भाई, ये जरा मुझको माइक आप दे दीजिए। जी नाज़रीन कराम, मैं मजीद जो ख्वाजा सरा है उनकी खिदमत में सवालात रखने वाला हूँ, चूंकि आज जो प्रोग्राम है ये इंतहाई तारीखी प्रोग्राम है सोशल मीडिया की हिस्ट्री का, ये डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सपना। ये सपना, माइक पकड़ लीजिए जरा। सपना, जरा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं। जी आप ट्रांसजेंडर हैं, जी ख्वाजा सरा हैं, जी। या आप बाकायदा मर्द हैं, बस खुद से ये चेहरा अपनाया हुआ है? नहीं, शुरू तुम हाँ, शुरू से। 5-6 साल से ना हम हाँ। फौज जब से संभालिए ना, बस हमारे हालात ऐसे थे, कुछ घर वाले सब ताने मारते थे, हाँ। और मोहल्ले वाले किसी की शादी होनी कपड़े बाले और नाच लिया गा लिया, सब लोगों ने हिंजड़ा खुसरा ऐसे पुकारते थे, तो इसी वजह से फिर है ना हम घर से भाग आए। आप घर से भाग हाँ आए, जी। यानी आपकी अम्मी ने आपको रोका नहीं, अब्बू ने रोका नहीं, बहनों ने, भाइयों ने? नहीं, वो ऐसे हो जाता ना साहब जी, वो जब हुए थे ना, जब उसको पता चला था बीबीएससी फील्ड में, तो फिर मैंने उसको बताया, आप खुद ही पुकारते थे मुझे ये जी हाँ, हिजड़ा पिज्जा। मैंने कहा बस मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो जिधर भी हूँ। जी हाँ। तो ऐसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अम्मी की याद आती है, अब्बू की याद आती है? हाँ जी, याद तो आती है, लेकिन बात भी होती है सबसे, अच्छा, मिलते भी हैं, कभी कभी जाते हैं इंशाल्लाह घर से, हाँ। तो अम्मी अब्बू की याद भी आती है, लेकिन उसको देते हैं, खर्चा पर्चा भी देते हैं सब। अच्छा, आप देते हाँ हैं, जी यानी घर वालों के पास जाते हैं? हाँ जी जाते तो जब आप बहुत लंबे अरसे के बाद अम्मी से जाके गले लगते हैं, हाँ जी। तो कैसा महसूस करते हैं? बस ऐसे ही बहुत 2-3 दिन रहते हैं, ज्यादा नहीं, बाहर नहीं जाते, उसके पास ही रहते हैं, उसकी टांगे दबाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, अम्मी की दुआएं लेते हैं उसकी। हाँ, हाँ। ऐसे करते हैं। तो अम्मी ये तो नहीं कहती चले जाओ मेरे घर से, मेरे नहीं, दूसरे बच्चों पे असर पड़ेगा? माँ तो नहीं निकाल सकती, हाँ, नहीं कर सकती। बहन भाई सब लोग ताने मारते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ, वो ही। क्योंकि आप स्पेशल है ना, हाँ जी आपको कबूल नहीं करता माशा। जी। नहीं जी बिल्कुल ठीक है, आपने अपना सफर जी। बताया। भाई आप मुझे बताइए, माइक जरा दे दीजिए, ये माइक मुझे दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सब आपका? दोस्तों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम शाहीन। शाहीन। जी तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, जी। तेरे परवाज़ आगे है काम। आसमान और भी है। मुझे बताइए अभी तक कहाँ कहाँ तक प्रवास कर चुकी हैं आप शाहीन? मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान का ही विजिट कर चुके हैं पूरा जी। पाकिस्तान। तो पूरा पाकिस्तान घूम के कैसा महसूस किया, क्या लगा आपको? मैं पहले मेलों पे गई हूँ 13 साल की एज में। मेलों पे? जी। ठीक है। सबसे पहले उनके ख्वाजा सराओं के हाथ लगी हूँ, जब मैं उनके साथ मेले में नहीं करती रही, अब एज भी ज़्यादा होगी, फिर मैं मेलों पे नहीं चल सकती थी, फंक्शन वगैरह पे नहीं चल सकती थी। उम्र क्या है आपकी? 40। हाँ मैं देख रहा हूँ आपके बालों में चांदी उतर चुकी है। जी 40 एज है मेरी। 40 साल। तो मैं अपने आप को छुपाती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा हार्ड कराने की थी, तो मुझे घर वाले एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और जो मेरी मदर थी ना वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। उनको चोरी छपे में कभी, अब ये लाहौर है, मैं उनको शदर बुला लेती, उधर मिल लेती। आप लाहौरी से हैं बेसिकली? नहीं, बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से हैं? जी। तो मैं तो कभी आपको घर से वो निकाला कुछ गया जगह या में- घर से भागी आप? बस स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे अंकल थे, तो उन्होंने आके मेरे ना अब्बू को कहा कि इनको ना स्कूल से टालो। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे ये स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। कि उन्होंने कहा किस वजह से लायक नहीं है? कह रहे कि ये शी मेल है, तो इनको सब लड़के तंग करते हैं, तो ये पढ़ाई नहीं कर सकते, सारे दिन इनकी शिकायतें आती हैं। तो घर में मेरे जो अब्बू ने रखा, वहाँ से मैं फिर तंज करते, ये खुसरा है, ये इंजड़ा है, ये जनाना, इनको निकालो, ये लड़कियों वाले काम करता है। तो मुझे घर से ना निकाल दिया गया। फिर मैं 6-7 साल घर नहीं गई। उसके बाद ये मेरे गुरु बैठे, मैं इनको हाथ लग गई, मेले में नहीं तो ख़त्म होगी। अब मैं मांगती हूँ, कोई मैं सेक्स वगैरह वाला काम नहीं करती, क्योंकि मेरी एज भी है, और अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो बस इस्तग़फ़ार, और इन कामों से अल्लाह सब जो करते हैं उनको भी बचाए। और दीन के अलावा से अल्हम्दुलिल्लाह सब जानती हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, फितराना सब भी करते हुए, पर हम लोगों पर क्या है, अब उम्र के लिहाज से हमें मांगना पड़ता है। ठीक है। लोग नहीं, लेकिन अब जब आप जवान थे उस वक्त क्या करते थे? लोग अकालत की नज़र से देखते थे।
ठीक है, अब भी देखते हैं, उस टाइम भी देखते थे। उस टाइम में जब जवानी में मेलों पे होते थे तो हमारे पीछे पैसा होता था, अब हम पैसे के पीछे हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात बिल्कुल है सही ना। बात है। जवानी में सब पसंद करते हैं, मेलों पे रही हूँ, फंक्शनों पे चली हूँ, कजरियों के साथ रही हूँ, पर ये नहीं, अब उम्र ज्यादा हो गई, अब मैं नहीं चल सकती, ठीक अब मैं और कोई काम भी नहीं कर सकती, ठीक है, सही है। इस वजह से मुझे मांगना पड़ता है। अब अच्छा, मैं मुझे गुरु आए, इनके पास आ गई हूँ। नहीं, वो बहुत हाँ, प्यारी है, तो बहुत ये अच्छे से हमारे बहुत अच्छे अखलाक से बात गुरु करते हैं, हैं। और वो इनको अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, और आप सब भाइयों को भी। बहुत शुक्रिया। हाँ, और मेरे जो सुनने वाले हैं उनको भी मेरी यही है कि आप नमाज रोज़ा जो भी है अदा किया करें, क्योंकि हम शी मेले हम भी बहुत इस पे गौर करते हैं। और कभी कभार ये नहीं कि हम डेली, कभी मेकअप किया होता है तो हमारा नमाज नहीं होती, ठीक है, मेकअप के बगैर नमाज होती है हम शी मेल की, ठीक है। कपड़े चाहे जैसे भी पहने हों, जी। पाक साफ हूँ, पाक साहब हम नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते हैं। जी। हम मौलाना साहब के साथ भी तबलीग में गई हैं, सरोजे पे गई हैं, 2-3 सरोजे लगाए उनके साथ, उनके शहर में 10 अच्छा, साल। मुझे आप ये बताएं कि आपको कभी हमने मसाजिद में नहीं देखा, हम मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, कभी हमने ख्वाजा सराओं को नहीं देखा कि वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे जी। हैं, तो आपकी क्या कोई अलग से मस्जिद हुआ करती है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम जाती हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में, मसाजिद में अब भी जाती हैं। क्यों नहीं, आपको कभी देखा नहीं क्यों नहीं मसाजिद में? जाती? हम अपने रूप से लाते, क्यों? हमें जो अच्छे अखलाक वाले, जिनका मुसलमानी ज़हन है, दिमाग है उनके अंदर, ये भी इंसान है, उसी नबी की उम्मत है जिनकी हम में, तो हम उनके, वो हमें उस नज़र से नहीं देखते, बल्कि खुश होते हैं और हमें दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हम मसाजिद में जाती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, घरों में भी पढ़ती हैं, अगर टाइम नहीं लगता बाहर जाने का तो घरों में पढ़ लेती हैं। ठीक है, सही तो हमें कोई ये नहीं कहता, कोई 100 में से एक आधा होता है, कहते ये देखो ये शीमेल आ गया नमाज पढ़ने, तो वो कहते क्या अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो वो नमाज पढ़ने आ गया, इसमें कोई हरज नहीं। हालांकि वहाँ के जो इमाम है वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। बिल्कुल सही है। अच्छा, जी। मुझे आप ये बताइए कि आप ख्वाजा सरा हैं, जी जी आपको पैदा करने वाले ख्वाजा सरा तो नहीं होते? जी नहीं, वो तो औरतें होती हैं, जी जी, मर्द होते हैं। मर्द औरत होती है। तो अभी मुझे ये पता चला कि यहाँ पर एक हमारे ख्वाजा सरा हैं, जी। उनकी अम्मी भी यहीं पर हैं। जी तो मैं नाज़रीन कराम आपको बताता चलूं कि यहाँ एक मैडम बैठी हुई हैं, ये ख्वाजा सरा हैं, इनका ये कहना है कि मेरी अम्मी भी इसी महफिल में मौजूद हैं। इनकी जानिब बढ़ता हूँ और सवाल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या? दिलकश। अच्छा, दिलकश तेरी अदाएं। मुझे बताइए कि आपने अभी कहा मुझको ऑफ द कैमरा भी और पीछे बैठे हुए भी कि आपकी अम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है, तो गुरुजी आप मुझे बताइए, इनको पैदा करने वाली तो औरतें होती हैं, तो यहाँ तो सब ख्वाजा सरा हैं, तो ये तो अजीब मामला हो गया ना? ये अजीब मामला नहीं है, पैदा हमें औरत ही करती है, हम आसमान से नहीं टपते ना जमीन से निकलते हैं। हाँ, ठीक है, हमें औरत ही पैदा करती है, हम औरत का एक, लेकिन इनका ये कहना है मैं ना, आपको बताती हूँ, लेकिन जब हम फैमिली से जुदा होते हैं ना, फैमिली से अलग होते हैं, तो इसी तरह हम रिश्ते बनाते हैं, किसी को माँ बना लिया, किसी को बहन बना लिया, उसको दुपट्टा दे के, तो इसी तरह हम अपने रिश्ते बना के अपनी जिंदगी लाइफ और गुजारते हैं। ठीक है, किसी को मम्मा कह लिया, किसी को बाजी कह दिया, ठीक है, इस तरह। ठीक है। मैं बस आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ, उसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि किसी को अगर नात वगैरह आती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो नात भी पढ़े। आप मुझे बताइए कि चूंकि आप गुरु हैं और आपका नाम मिस शबनम है और आपका माशाल्लाह एक मरकज भी है, इदारा आप चला रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं शहर लाहौर में, मुझे आप बताइए कि ख्वाजा सरा जब मर जाते हैं इनका जनाजा कौन पढ़ाता है? हमने नहीं देखा कि आम मसाजिद में इनका ऐलान हो रहा है कि भाई फलां ख्वाजा सरा इंतकाल कर गया, फलां इसके बाप का नाम है, यानी इसके बाप का नाम फलां है, इसके भाई का नाम फलां है। मैं आपको बताती चलूं, कराची का वक्त, कराची का दौर जी, कराची हम रहते थे, ये माइका पकड़ लीजिए। तो वहाँ हमारी एक ना ख्वाजा सरा की डेथ हो गई कराची में, जी, तो वो रहने वाला पंजाब का था। जी, तो जब हमने उसके भाइयों को कॉल की ना, तो उन्होंने कहा कि इसको वहीं दफना दो, इसकी लाश यहीं नहीं पहुँचानी। ठीक है, ठीक है, हम उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेके गए हॉस्पिटल से ईदी वाले लेके गए हैं, ठीक है, उन्होंने भी जनाजा 3 दिन नहीं कराया, ठीक है, सही है, वहीं रखी बॉडी। सही है,
सर्द खाने में। 3 दिन के बाद हम सब ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए हैं, रोला डाला है, वहाँ से हमने लाश निकाली है। जी हाँ। हमने लाश ले आके ना, हमें पता था अब नमाज का टाइम हो गया, लोग नमाजी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हमने वो उसकी बॉडी ले आके ना मस्जिद के दरवाजे के आगे रख दी। अच्छा, तो मैं जरा गुजारिश करूंगा जरा खामोश हो जाए भाई, मेहरबानी आपकी। जब हमने उसकी बॉडी ले आके ना गुस्ल दे के कफन पहना के, तो उसकी बॉडी ले आके हमने मस्जिद के दरवाजे के आगे रख दी। ठीक है। जुमे का दिन था। जैसे ही लोग बाहर निकले ना, तो हम मौलवी के पैरों में गिर गए कि अल्लाह के मानने वाले हो तो अल्लाह के नाम पे इसका जनाजा करा दो। तो यानी जनाजा कराने के लिए कोई तैयार नहीं था? तो फिर वहाँ कारी साहब ने जनाजा कराया, और जितने वहाँ लोग जुमा पढ़ने गए थे, कुछ लोगों ने पढ़ा और कुछ लोग हमें तन्हा बातें कर छोड़ रहे रहे थे। हाँ, तंज भी कर रहे थे। तन तो इनका यानी कब्रिस्तान अलग नहीं होता? नहीं होता। लेकिन इनके ऐलान भी हम नहीं सुनते ना मस्जिद में। ऐलान इस तरह कैसे आप सुने? अब जो जिसकी कल डेथ हुई है उसका नाम अकबर था, उसके माँ बाप ने उसका नाम अकबर रखा हुआ था। हाँ, ठीक है। तो हमारी फील्ड आपने में क्या रखा था? कोमल। कोमल। तो जब वो यहाँ से लेके गए, उसके बाल काट के उसको कपड़े वगैरह लड़कों वाले पहना के ले गए हैं, तो उन्होंने उसका नाम वहीं रखा होगा, अकबर। हाँ। तो जो हमारे सामने जनाजा हुआ, जो हमने जबरदस्ती मौलवी से पढ़ाया था, तो वो हमारे ख्वाजा सराओं में हुआ था। क्या इस्लाम में ट्रांसजेंडर्स के नमाज जनाजा का कोई ख़ास तरीका है? ट्रांसजेंडर्स के नमाज जनाजा का कोई ख़ास तरीका नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि आपने हिजड़ों का या मुखन्नसीन का या ट्रांसजेंडर्स का अमूमन जनाजा होते हुए देखा नहीं होगा। ये अमूमन रात के वक्त खुद ही जनाजा पढ़ के, जनाजा क्या इनको नमाज भी नहीं पढ़नी आती। ये तो अल्लाह भला करे तबलीगी जमात का, जिन्होंने पहली दफ़ा इनको भी कोई इंसानियत में समझते हुए इनकी जमातें निकालनी शुरू की हैं, इनमें दावत और तबलीग का काम शुरू किया है। हिजड़ों की जमातें बाकायदा निकलती हैं तबलीगी जमात की जनाब। उन्होंने इस पोर्शन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, और बड़े बड़े नेक हिजड़े हैं जो अपने सारे काम छोड़ के इन कामों में आ चुके हैं। जनाजे का इसलिए होता है कि जनाजा अमूमन इनका पब्लिकली पढ़ा नहीं जाता, रात के अंधेरे में ये खुद ही पढ़ के दफना देते हैं। इस वजह से आम लोगों में इनके अनाउंसमेंट भी नहीं होती है, पूरी एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। हत्ता कि जिन घरों में कोई हिजड़ा पैदा भी हो जाए, हिजड़े आके ले जाते हैं। हालांकि माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी मुआशरे का हिस्सा है, आप इनको ये नहीं पालें। ज़ाहिर अल्लाह ने, देखें एक तरफ अगर अल्लाह आपको हिजड़ा दे दे, इसके बदले में आपको एक पैरेलल बच्चा मिल जाए, पैरालाइज हुआ हो, फालज गिरा हुआ हो, तो दोनों में से किसकी परवरिश करना आसान है? हिजड़े की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी के घर हो जाता है तो कहें शुक्र है या अल्लाह, इसको आज़ाद तो तूने पूरे दिए, एक चीज़ डिसेबल रखी ना। तो ये माशरे में बड़ा ये पिसा हुआ तबका है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अमूमन फ़कीरों को झिड़की तो नहीं देता हूं, लेकिन माल पानी भी नहीं देता। मुझे पता ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन मुझसे अगर कोई हिजड़ा आके मांगता ना, तो मैं ज़रूर दे देता हूँ। ये पिसा हुआ तबका है इस माशरे का, हकीकत बात है। अगरचे इसमें कई लोग प्रोफेशनल भी बने हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर हमारे पास तो कोई जज करने का तरीका नहीं है कि कौन प्रोफेशनल है। बाकी एक चीज़ है, ये बड़े ऑर्गेनाइज हैं। इनका आप लोग तो एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे। एक सियासी जमात है, वो दूसरा पॉलिटिकल लीडर को नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन हिजड़ों के अंदर हर शहर के अंदर एक इनका लीडर होता है। उसको क्या कहते हैं? बेबे बेबे भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में। आप यूट्यूब पे पूरे प्रोग्राम देखें इनके ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हुए हैं। तो फिर मुल्की लेवल पे भी एक होता है, फिर जब कोई फौत होता है तो उसकी जगह सक्सेसर उसका बनाया जाता है। पूरा इनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, बस आखिरी सवाल है, फिर मैं जाहिर है कि आपकी खिदमत में कुछ अर्ज भी करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए आप कि आप में से कोई ऐसे भी होते हैं जो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, किसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, यानी सुन्नी, शिया, वहाबी? हमारे में हम सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो कम्युनिटी में के लोग हैं ना, हर फिरके के हैं। ठीक है, सही है। कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई सैयद है, कोई हर तरह के हैं। सही है, ठीक है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में सब इंसान है। हाँ, वाह वाह। हमारे में कोई फिरका नहीं। बिल्कुल ठीक है। हम अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। तो हम मौला अली को मानते हैं। ठीक है। न्याज़े देते हैं, चिराग बालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मौला अली के मानने वाले, हमारे दिलों में मौला अली बसते हैं। सुभान अल्लाह। बाकी यह है कि इनमें भी बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हदीस भी हैं, शिया भी हैं, फिरके तो हैं ही है ना।
تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ نارمل مرد ہیں نا انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا. سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں. گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے. جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا. اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں, ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر, ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہجڑے بھی موجود ہیں. اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے. معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے, بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے, چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے, باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو, وہ اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہجڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے, وہ اسی قسم کی وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دیں گے. اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا. پالیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں, لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں, لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیخ نکاح کروائیں, خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں, معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں. لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا. باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو, این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے, ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں, لوگ آوازیں کستے ہیں, پھبتیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں, تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو منع کرنا چاہیے, یار یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کی ہے, آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے, اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے. ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حالات و واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قطعاً کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں, نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں, اللہ سے ڈریں. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب, میں نے ابھی ذکر بھی کیا اور کلپ بھی ان کے ہم نے پروگرام میں چلوائے. وہ ظاہر ہے کہ آپ کے حقوق کے لیے بہت آواز بلند کرتے ہیں اور جہلم اکیڈمی وہ درس دیتے ہیں ہر اتوار. تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو یا ان کے سننے والوں کو؟ میں سب سے پہلے تو اس کو پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے ادارے میں وہ ایک قاری بھیجے اپنا شاگرد جو مجھے چاہیے. یہاں 130 خواجہ سرا رہتے ہیں, تو وہ آئے تو ہم لوگوں کو دین سکھائے اور دین کی ہمیں دعوت دے. تو انشاءاللہ میں ایک 120 خواجہ سرا کو اس کے پاس بٹھاؤں گی. اور جگہ کو تو رینج میں نے کیا ہوا ہے. میرے پاس کاری نہیں ہے, جو کاری آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, 10-15 دن کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. مجھے کاری کے صاحب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, تو ہم بھی جانا چاہتے ہیں انجینئر صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے. تو ہمیں یہی دل میں خوف ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں دوسرے بگا دیتے کہیں وہ نہیں ہمیں بگا دیں. انجینئر صاحب آپ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کی بات کرنے والے ہیں, اور ان کو ایک خوف لاحق ہے کہ شاید ان کو دروازے پر ہی نہ روک لیا جائے. آپ کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. آخر پہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہے گا, لیکن میں آپ کے لیے ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. وہ آپ تمام ہی کی ترجمانی ہوگی. ناظرین کرام, میں ان تمام خواجہ سرا کی کمیونٹی کو ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. یہ مائک مجھ کو دے دیجیے. ماں جی, میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا. میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی. واحد روانی تمہارے آنسو کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھی. تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی, مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور بھی تھی. محلے والوں کے تانے,
रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुपती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं इस काल कोठड़ी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टिकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठड़ी में कुछ सुनाई न देता था। हम दोनों आंसुओं की जुबान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है। आखिर क्यों ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा मेरे हर सवाल के जवाब में खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूं ना। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई है जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हां, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी खत्म ना हो। मगर सुबह होती और तुम फिर इस औरत का लिबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, अब ये आपकी तर्जुमानी है, जिस दिन अब्बा ने मुझे, और आपकी आंखों से आंसू भी इस वक्त रमा है, मैं इस वक्त देख सकता हूं, जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, इस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफी का तलबगार रहा मगर मेरी सुनवाई ना हुई और फिर गाली गलोच करते हुए, जमीन पर घसीटते हुए, जन खा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया गया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तुम हमारे लिए मर चुके हो। ये जुमला सुनते ही मेरी हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमजोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई जुबान खामोश हो गई। मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते। और तुम मां अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहां छोड़ गए जहां एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नजर रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवानावार भागता, मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती और फिर तुम अपने हाथों से निवाले बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर निवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो निवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थीं, पर जब घर बदर ना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता था। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सहन में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते देखता तो हर बार दिल में यह ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोककर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा लें, मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई।
घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ जिसके कर्ब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शुरफा, नाज़रीन कराम, चंद शुरफा। जब चंद शुरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए, मुझे जबरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भीड़ चढ़ा डाला। मां, मैं इतना छोटा और कमजोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। फिर इस ही बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर यह सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज ही अपनी ही नजरों में गिरता रहा, मरता रहा, कुड़ता रहा, सिसकता रहा, बिलखता रहा। करता भी तो क्या कि अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह न थी। फिर इसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद माशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा तेरे घर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। इनके सीने में दिल भी हमारी तरह ही धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सजा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म यह होता है कि हमारा खून सुर्ख है और माशरे का सफेद। मां, मैं ये सारी जिंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफेद खून रखने वाले लोग कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी गोलियां मारी गईं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो जिंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा? जब मलिकुल मौत मेरे पास आया तो मैंने इससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरखास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे जख्मों की टिकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की मोहलत भी ना दी। सुना है कयामत के रोज बच्चों को मां के हवाले से पुकारा जाएगा। बस मां, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि इस दिन तुम मुझसे मुंह ना फेरना। रोज़े क़यामत तुम मुझसे मुंह ना फेरना। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार। आखिर पर आप कोई पैगाम देना चाहें गुरुजी? मेरा पैगाम सबसे पहले यही है, आप आज बच्चों को घर रखते हैं, नबीना बच्चों को घर रखते हैं, तो ख्वाजा सरा बच्चों को घर क्यों नहीं रखते? अगर माँ बाप ही ख्वाजा सरा को घर इज्जत दे, घर दूसरे बच्चों के साथ दूसरी जैसे उनको इज्जत दी जाती है, उनको पढ़ाई तलीम दी जाती है, तो उनको तलीम दें, उनको घर में रखें, एक माशरे का हिस्सा बच्चा बनाएं, तो वो बच्चा दर बदर की ठोकरें क्यों खाए? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ना तो रियासत हमें इज्जत देती है तो ना हमें माशरा देता है इज्जत। सबसे पहले इज्जत हमें घर से नहीं मिलती, हमें घर वालों को चाहिए हमें इज्जत दे, तो बाद में हमें माशरा भी इज्जत देगा। सबसे पहले टॉर्चर भी घर वाले करते हैं। हत्ता कि जिन घरों में कोई हिजड़े पैदा भी हो जाए, हिजड़े आके ले जाते हैं। हालांकि माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी मुआशरे का हिस्सा है। आप इनको ये नहीं पाले, ज़ाहिर अल्लाह ने देखें एक तरफ अगर अल्लाह आपको हिजड़ा दे दे, इसके बदले में आपको एक पैरेलल बच्चा मिल जाए, पैरालाइज हुआ हो, फालज गिरा हुआ हो, तो दोनों में से किसकी परवरिश करना आसान है? हिजड़े की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी के घर हो जाता है तो कहें शुक्र है या अल्लाह, इसको आज़ाद तो तूने पूरे दिए, एक चीज़ डिसेबल रखी ना। तो ये माशरे में बड़ा ये पिसा हुआ तबका है। बाकी एक चीज़ है, ये बड़े ऑर्गेनाइज हैं। इनका आप लोग तो एक अमीर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे। एक सियासी जमात है वो दूसरा पॉलिटिकल लीडर को नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन हिजड़ों के अंदर हर शहर के अंदर एक इनका लीडर होता है। उसको क्या कहते हैं? बेबे बेबे भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में। आप यूट्यूब पे पूरे प्रोग्राम देखें इनके ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हुए हैं। तो फिर मुल्की लेवल पे भी एक होता है, फिर जब कोई फौत होता है तो उसकी जगह सक्सेसर उसका बनाया जाता है।
पूरा इनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा होता है। बाकी यह है कि इनमें भी बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हदीस भी हैं, शिया भी हैं, फ़िरके तो हैं ही है ना, तो वो उसी तरीके से चल रहे हैं। नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हिजड़ों का मसला नहीं है, जो लोग नॉर्मल मर्द हैं ना, उन्होंने भी इनको आला कार बनाया हुआ है अपना। सबसे बड़े मुजरिम इस हवाले से वो भी हैं, गवर्नमेंट भी मुजरिम है कि इनके कोई हुकूक दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। नाज़रीन कराम, मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में ये पहला प्रोग्राम होगा, और जिस तरीके से इस प्रोग्राम को निभाया गया और ख्वाजा सरा ने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, ये आज से पहले कभी ना हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर दिन ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।